नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के अकमादेवी कॉलेज में बीदर कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वर खंडरे, स्वराज जबशेट्टी, रहीम खान, हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल और दूसरे नेता रहे शामिल। गुलबर्गा जिले के शाहबाद तालुका में लॉकडाउन के दौरान सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। अनलॉक कर रहे राज्यों को केंद्र सरकार की सलाह, टीकाकरण बढ़ाए, ढिलाई न बरते, बताई 5 रणनीतियां। अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही यह बात। उत्तराखंड में आई बाढ़, काली नदी में पानी खतरे के निशान के करीब, कई जगह हाईवे बंद। मिल्खा सिंह के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड, कई फिल्मी सितारों ने दी फ्लाइंग सिख को श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आज जन्मदिन के अवसर पर अकमादेवी कॉलेज में बीदर कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केपीसीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर खंडरे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, बीदर के विधायक रहीम खान, हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल और जिला कांग्रेस महिला अध्यक्षा मीनाक्षी संग्राम उपस्थित थे। साथ ही कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर इन सभी नेताओं ने इस रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान करने वालों का धन्यवाद किया। मीनाक्षी संग्राम ने महिलाओं में तेल के पैकेट्स और रक्तदान करने वाली महिलाओं में सर्टिफिकेट वितरण किया। इस अवसर पर ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस रक्तदान शिविर का विवरण किया। ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಜನರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೇನು ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ, ಅವರೇನು ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತೇನು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ। ಇವ್ರ ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ನೀನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನದ ಸಂಗತಿ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ, ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ। ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರದ್ದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಏನಂತೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು? ಈಗ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಸ್ವತಃ ಅವರದ್ದಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ। ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1,80,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಸೋಯಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 1,80,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ 1,25,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇವತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಬೇಕು। ನಾನು ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ। ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 91,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ। ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದು 1,15,000। ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಏನಿತ್ತು, 30 ಕೆಜಿಗೆ 1,260 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು। ಇವರು 1 ಕೆಜಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹೋದ ವರ್ಷ ಇವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 67 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಈ ಸಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 106 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಡಬಲ್। ಹೀಗಾಗಿ 30 ಕೆಜಿಗೆ ಇವರೀಗ 1,000, 2,370 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನು, ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟನು, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बीदर जिला के औरादबी तालुके के सभी ग्रामों में एग्रीकल्चर ऑफिसर की ओर से सोयाबीन, जवार, मूंग, उड़द वितरण किया गया। इस अवसर पर एग्रीकल्चर अफसर अब्दुल मजीद ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का पूरा विवरण किया। सहायक कृषि निर्देशक औराद यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं अब्दुल मजीद, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर औराद। मैं आप लोगों को इस मौके पे ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुक़े में सोयाबीन हमारे को रिक्वायरमेंट था 34,200 कुंटल का रिक्वायरमेंट था, जिसमें ज़िला ऑफिस से जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस से हमारे को 30,200 कुंटल का इंडेंट दिया गया, जिसमें से 28,136 कुंटल हमको सप्लाई हुआ। तकरीबन 28,136 कुंटल अब तक सप्लाई हुआ है हमको, यानी कि 6,000 कुंटल हमको सप्लाई कम हुआ है। सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये सप्लाई कम रहा हमको, जिसकी वजह से आज कुछ काश्तकार कुछ गांव में जैसे कि आप लोगों को पता है कि औराद के करीब 14 से 15 गांव में हम बीज नहीं दे सके, क्योंकि ये बीज हम जो सप्लाई करते हैं देते हैं हर साल की तरह पिछले कई साल से ऐसा चलते आ रहा है कि हम गांव रईत संपर्क केंद्र में एक लॉटरी सिस्टम करके एक दिन एक गांव देते हैं, जिसकी वजह से जो आखिरी में गांव बच गए हैं वो गांव में बीज नहीं मिल सका। हर रईत संपर्क केंद्र में 2 से 3 गांव, कई जगह पे 4 गांव पे बीज हम दे नहीं सके क्योंकि बीज की सप्लाई कम हो गई। जैसा कि मैं बताया आपको कि 6,000 कुंटल हमको कम आया है। अगर ये 6,000 कुंटल बीज हमको आता तो हम पूरे ताल्लुक़े में पूरे काश्तकार को सही तरीके से बीज हम सप्लाई कर सकते थे। और इसका सप्लाई कम होने की वजह यह है कि पिछले साल हमारे पास प्रोडक्शन कम हुआ है सोयाबीन का बीज का, एमपी में भी प्रोडक्शन कम हुआ है। इसकी वजह यह है कि जब हार्वेस्टिंग टाइम पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से बीदर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार कुंटल माल प्रोडक्शन होता था, बारिश की वजह से पूरे फेल हो गए हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के शाहबाद तालुका में सिटीजन क्लब शाहबाद की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सेवा करने वाले तालुका तहसीलदारों, सरकारी अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों और नगर निगम पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों की सेवाओं की प्रशंसा की। सहारा समारोह हॉल में एक बधाई बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर शाहबाद के तहसीलदार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी तरह शाहबाद तालुका में सिटीजन क्लब ग्रुप ने भी कोरोना रोगियों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए हैं और गरीब कामकाजी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। लेकिन अन्य सामाजिक संगठनों को भी इस महामारी के दौरान गरीब कामकाजी लोगों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। पशु एवं बीदर जिला कार्यवाहक राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि टीका नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता से टीका लगवाने की अपील की है। जनता को टीका लगाया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा, मैंने वैक्सीन की दूसरी खुराक भी ली है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। टीका सुरक्षित है। उन्होंने अपील की कि बीदर जिले के प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण किया जाए। यादगीर जिला के उपायुक्त डॉक्टर रागा प्रिया ने अधिकारियों को यादगीर जिले में छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारी 20 दिन के अंदर जमीन की पहचान का काम पूरा करें, क्योंकि छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। इसलिए जमीन की पहचान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। देश में कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर कोविड संबंधी व्यवहार और टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हालात पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए कहा है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकारों को टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाने की सलाह दी है। मार्च के बाद संक्रमण के नए मामलों में इजाफा होने के चलते कई राज्यों ने आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखे पत्र में कहा, मामलों में गिरावट के बाद गतिविधियों को दोबारा शुरू करना जरूरी है। ऐसे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बात को सुनिश्चित करे कि पूरी प्रक्रिया सावधानी के साथ अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि
पाबंदियों को लगाने और हटाने का फैसला जमीनी हालात के आकलन के बाद लिया जाएगा। पत्र में सचिव भल्ला ने कोविड की रोकथाम के लिए 5 रणनीतियों पर जोर दिया है। इसमें कोविड संबंधी व्यवहार, टेस्ट, ट्रैक, ट्वीट और टीकाकरण शामिल है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील के बाद लोगों की भीड़ का जुटना शुरू हो गया है। ऐसे में इस बात को पुख्ता किया जाना जरूरी है कि दोबारा खुलने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की ढिलाई न हो। भारत में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह आशंका व्यक्त की है। उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। मार्च के अंत में शुरू हुए लॉकडाउन के दौर के बाद देश के कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि एक्सपर्ट ने कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की थी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, अब जब हमने अनलॉकिंग शुरू कर दी है तो फिर से कोविड संबंधी व्यवहारों की कमी देखी जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें पहली और दूसरी लहर के बीच क्या हुआ, इससे कुछ सीखा है। फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लोग एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा अगले 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है या शायद इसमें थोड़ा और समय भी लग सकता है। उन्होंने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे कोविड संबंधी व्यवहारों को निभा रहे हैं और भीड़ से बच रहे हैं। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। राहुल गांधी अब 51 साल के हो गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से बने हालात के मद्देनजर उन्होंने इस साल भी जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 19 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन न करें। वहीं इससे जुड़ी कोई होर्डिंग, बैनर या पोस्टर न लगाए, बल्कि अपने पास मौजूद संसाधन का इस्तेमाल आम लोगों की मदद के लिए करें। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टियों के विभिन्न संगठनों को पत्र लिखकर राहुल गांधी की इस भावना से उन्हें अवगत करा दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी की यूथ विंग NSIU ने दिल्ली के रायसीना रोड में निशुल्क कोरोना जांच कैंप लगाया है। पार्टी के विभिन्न मोर्चों और कार्यकर्ताओं की ओर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 किलोमीटर लंबी रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन हुआ। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसका सबसे ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल। यह इस साल के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद
बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। यहाँ टीएमसी से धड़ाधड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से पाला बदल रहे हैं। सबके सब दोबारा ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं। टीएमसी ने शुक्रवार को तो इन दलबदलू कार्यकर्ताओं के चक्कर में सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं का पहले गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया और फिर इनकी टीएमसी में घर वापसी हुई। समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी ऑफिस के बाहर बीजेपी के 300 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनकी मांग थी कि इन्हें दोबारा टीएमसी में शामिल किया जाए। धरने पर बैठे एक कार्यकर्ता अशोक मोंडल ने कहा, हम चाहते हैं कि हमें टीएमसी में वापस लिया जाए। बीजेपी में शामिल होकर हमने अपने गांव के विकास को रोक दिया है। बीजेपी में शामिल होने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान हुआ। असम में शुक्रवार को देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछले 24 घंटे में 5वां भूकंप था। भूकंप के झटकों से जान माल के नुकसान होने की अब तक कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि यह भूकंप देर रात 1:07 पर आया था। भूकंप का केंद्र सोनितपुर के जिला मुख्यालय तेजपुर के पास जमीन के 30 किलोमीटर अंदर था। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि राज्य में शुक्रवार को इससे पहले 2 बार और भूकंप के झटके लगे थे। इसमें से एक भूकंप 4.1 तीव्रता का भूकंप था। इनके केंद्र भी सोनितपुर जिले में थे। शुक्रवार को आसाम के अलावा मणिपुर के चंदेल जिले में भी रेक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था। साथ ही 2.6 तीव्रता के एक अन्य भूकंप का केंद्र मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में था। इन भूकंप में भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। इससे पहले 28 अप्रैल को भी असम में 6.4 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले 6 सैन्य, पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का यह मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने ऐसे पुलिस और सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की थी। अभी जिन 6 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है, इनमें 3 एयरफोर्स, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस का जवान है। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो चाहे सेना में हो या पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, सिविल डिफेंस में हो, दिल्ली सरकार उनकी बहादुरी की कद्र करती है और वर्दी पहनने वाला हर आदमी अपनी जान पर खेलने की कसम के साथ, अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा, देश की रक्षा करने की कसम के साथ, उसके संकल्प के साथ वर्दी पहनता है। इस जज्बे को दिल्ली सरकार कद्र करती है और इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आते ही ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जान लड़ाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए जो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए शहीद होते हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की व्यवस्था की थी। ये जानते हुए कि कोई बहादुर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक ज़रिया बना रहे, उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है, उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी, जिनके जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। इसका फैसला आज दिल्ली सरकार की एक मीटिंग में लिया गया और 6 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बेटा देश की सेवा करते हुए खोया है, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए खोया है, सेना ने के में बॉर्डर पे खोया है या दिल्ली में था तो यहाँ खोया है। इसमें से 3 एयरफोर्स के हैं, 2 दिल्ली पुलिस के हैं और 1 सिविल डिफेंस के हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत यूपी एटीएस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
जो म्यांमार और बांग्लादेश से भारत आने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अवैध रूप से भारत में स्थापित कराकर देश में बड़े स्तर पर मानव तस्करी के साथ सोने की भी तस्करी कर रहे थे। आरोप है कि देश की जनसंख्या को असंतुलित करने के प्रयास के साथ हवाला के जरिए पैसों का लेन देन कर देश की अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचा रहे थे। यूपी पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता के बाद राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के एडीजी एटीएस जीके गोस्वामी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी। उन्होंने देश में अब तक सर्वाधिक 15 रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उनकी पार्टी कल एक बैठक करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ बैठक के लिए केंद्र के निमंत्रण पर चर्चा होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे 24 जून को बैठक के लिए फोन आया है। मैं आज या कल औपचारिक आमंत्रण की उम्मीद कर रही हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के बारे में उनकी पार्टी फैसला करेगी। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच चर्चा है कि केंद्र जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए पीएम मोदी की यह पहली बड़ी कोशिश है। उत्तराखंड के कई जिलों में मानसून के शुरुआती दौर में ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिथौरागढ़ जिले में काली नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। अधिकारियों ने नदी किनारे बसे गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ के डीएम आनंद स्वरूप ने कहा कि नदी 889.60 मीटर पर बह रही है, जबकि उसका खतरे का निशान 890 मीटर पर है। नदी के जलस्तर को देखते हुए धारचूला से झूलाघाट के बीच अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। शुक्रवार रात 11:30 बजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के 91 वर्ष की उम्र में निधन के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शोक प्रकट कर रहे हैं। फरहान अख्तर, जिन्होंने मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक बड़ा ही भावुक संदेश शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, मेरा एक हिस्सा अब भी इस बात को मानने को इनकार कर रहा है कि आप अब नहीं हैं। शायद यह उस जिद्दी साइड की वजह से है जो मुझे आपसे मिला है। वह साइड जो किसी चीज पर अपने दिमाग को सेट कर लेता है तो कभी हार नहीं मानता। शाहरुख खान ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है कि मिल्खा सिंह अब व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं रहेंगे, मगर उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाएगी। अमिताभ बच्चन लिखते हैं, दुख में हूँ, मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। भारत का गौरव, एक महान एथलीट और उससे भी ज्यादा एक महान व्यक्ति, वाहेगुरु दी मेहर, प्रार्थनाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को ट्वीट कर महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। शरद पवार ने ट्वीट किया कि स्पोर्ट्स आइकॉन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। अपनी गति और साहस के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और देश के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका नाम खेल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदन। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अकमा देवी कॉलेज में बीदर कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वर खंडरे, स्वराज जबशेट्टी, रहीम खान, हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल और दूसरे नेता रहे शामिल। गुलबर्गा जिले के शाहबाद तालुका में लॉकडाउन के दौरान सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह किया गया आयोजित। अनलॉक कर रहे राज्यों को केंद्र सरकार की सलाह, टीकाकरण बढ़ाए, ढिलाई न बरते, बताई 5 रणनीतियाँ। अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही यह बात। उत्तराखंड में आई बाढ़, काली नदी में पानी खतरे के निशान के करीब, कई जगह हाईवे बंद। मिल्खा सिंह के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड, कई फिल्मी सितारों ने दी फ्लाइंग सिख को श्रद्धांजलि। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।